हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो इस लेसन में हम बात करेंगे आईएएस ट्रेनिंग की। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है, मैंने कभी इस पर कुछ बात करी नहीं है एक्चुअली, मेरे एक्सपीरियंस क्या थे। और हज़ारों हज़ार वीडियो बनाने के बाद भी हैव नेवर डन दिस। सो लेट्स टॉक अबाउट आईएएस ट्रेनिंग लाइफ एट लबासना। इट्स नॉट कॉल्ड लबासना बाय द वे। लबासना को लबासना में बोलने पे बहुत लोड ले लेते हैं लोग। So they prefer it to call it LBS Academy, not Labasna. Labasna एक colloquial term है जो कि वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या होता है वहाँ पे लबासना में आपके हिसाब से? देखो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ 89th फाउंडेशन कोर्स को। 89th FC बोला जाता है उसको। और दिस 89th FC वॉज कंडक्टेड इन 2014। ये चालू हुई थी 2 सितंबर से और अंत हुआ था इसका 12 दिसंबर को। सो फॉर अबाउट 100 days वी वर इन मसूरी एंड ऑल civil servants who join, most rather not all, they are asked to come to Labasna for the foundation course. Okay, so what we do in Labasna? So basically everyone's dream place is to go there. IAS, IPS, IFS, IRS, postal services, revenue services, income tax, excise, audit and accounts. So many civil servants are there, railway personnel, railway traffic, so many civil services are there. So that I can't even tell you, it's such a mesmerizing feeling. I got a hotel like room, 5 star hotel जैसा रूम था मेरा सिल्वर वुड्स हॉस्टल में. So I used to share my room with माधव सुलफुले. He is an IFS ऑफिसर और वो अभी शायद रशिया में मॉस्को में वगैरह कहीं पोस्टेड है, I don't know. So we go there, we get this room, then you can reach 3 days before there. So if you go, दिल्ली से ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, so they take train or you can take a flight also. From Dehradun airport it takes about 2 hours to reach to academy, and from railway station it takes about 1 hour. तो वहाँ जाते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. मतलब यू फाइंड 300 रफली पीपल होते हैं, बढ़ा दिए हैं 400-500 लोग कर दिए हैं. एंड तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी इन लबासना एंड start interacting. So basically I'll just talk about the 100 days and later on we can talk about phase 1 and phase 2. So मेरे टाइम पे ट्रेनिंग 2 साल की होती थी. ट्रेनिंग के अंदर यू आर नॉट कॉल्ड IAS ऑफिसर, यू आर कॉल्ड एज IAS ऑफिसर ट्रेनी, बिकॉज बेसिकली यू आर ऑन प्रोबेशन. ठीक है. सो यू आर अंडर ट्रेनिंग, आपको UT बोला जाता है, अंडर ट्रेनिंग OT बोला जाता है, ऑफिसर ट्रेनी. नोबडी कॉल्स यू एन IAS ऑफिसर. तो जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, पहले 2 साल की होती थी, अब 3 महीने कम कर दी है, लगभग 1.5 साल की हो गई है. ठीक है. तो नाउ दैट ट्रेनिंग इज, पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद फेज 2 होता था, फिर सीधे SDM बना देते थे. अब क्या करते हैं, देर इज़ अ 3 months पोस्टिंग एंड दिस पोस्टिंग इज देयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, एंड वेयर यू गेट टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली. So basically when we went there, so for first 1 week we were just having orientation, ice breaking sessions. This I was very young basically, and I have not worked before except for AIMS. 4 महीने वो तो घर जमाई की तरह ही काम करवाते हैं, खुद के कॉलेज में तो कोई क्या ही काम करवाता है. So basically when you go to Labasna you realize that there is schedule which you need to follow and you have to wake up every day at 6 o'clock. तो वहाँ पे 2 ग्राउंड होते हैं. एक हैप्पी वैली होता है which is just next to your hostels, and then there is one ground which is called as the polo ground. So polo ground is like way deep, you have to go for 1.5 kilometers. And right now our prime minister was there for 2 days, by the way, if you don't know. For 26th and 27th October he stayed there for 2 days, and he did yoga with the officer trainees, and he ate food with them, and he gave lectures to them. He was just spending time with them. So it is very a great feeling कि आप योगा कर रहे हो और आपके लेफ्ट साइड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी योगा कर रहे हैं आपके साथ. So such lot of such moments happened with me. So I met very great personalities there. I met Raghuram Rajan sir, and he interacted with us, and he is one of the best minds I know personally. Then we also interacted with SY Qureshi sir, who was the Chief Election Commissioner of India, and he has been recently awarded a great award. Just Google him, you'll find it. और फिर हम अरुणा रॉय मैम से भी मिले. शी वॉज एन IAS ऑफिसर, अ लेडी IAS ऑफिसर, एंड शी रिजाइंड फॉर द कॉज ऑफ द पीपल. शी इज़ अ वेरी बिग नेम इन RTI Act. देन वी मैट सेबी चीफ UK सिन्हा. ही इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ आई थिंक 75-76 बैच. एंड सो बेसिकली देयर वाज सो मैनी बिग पर्सनैलिटीज. टॉम एल्टर जो भी पास अवे हो गए, जो शक्तिमान के गुरु होते हैं, गॉड रेस्ट हिज सोल. Then we had Gurcharan Das, who wrote a lot of books on Mahabharata, Ramayana.
सो बेसिकली आर शेड्यूल फॉर 100 days वॉज वेरी वेरी रिग्रेस। वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती शुरू के 6 days में, बट यू नो बैक बेंचर्स होते ही हैं, बंक तो कर ही लेते हैं। सो वी यूज टू बंक क्लासेस एंड एवरीथिंग, and I almost always used to come to Delhi for the weekend because I really love that city. Anyway, so the schedule is very rigorous. So you wake up at 6 o'clock, but again there are hacks around it. And if you're in LBS, then you'll find out that many people don't go to PT actually, and they have some hacks. They have figured out some hacks. Anyway, I can't share more. So basically, you do a PT session for 1 hour, and कभी बारिश वारिश हो जाती है तो उसको कैंसिल भी कर देते हैं, कोई इतना फाइटर काम नहीं होता। Then for 6 to 7 you are in PT. Sometimes in phase 1 especially when you are only IS officers are left, then you do horse riding also, घुड़सवारी कराते हैं, काफ़ी एक रॉयल फीलिंग आएगी आपको। बट शुरू के 1 हफ्ते में आपको बता देते हैं कि आप ऑफिसर लेवल पे नहीं हो, आप बस आप लोगों को रूल करने नहीं आए, पहले लर्न्स याद करना सीखो। हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इज़ द बिगेस्ट पार्ट। सो यू गो देयर, देन फ्रॉम 7 to 9 यू आर सपोज टू गेट रेडी। लोग 1 घंटा नहाते हैं, कोई लोग जिम जाते हैं पीटी के बाद, एंड लेकिन यार मेरे को बहुत ठंड लगती थी तो मैं तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करने जाता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ टू स्लीप इन माई रूम ओनली। मेरा रूममेट मेरे को उठा उठा के परेशान हो जाता था, बट आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 8:50। वो थोड़ा हाथ मुँह धो के और चला जाता था कपड़े पहन के, और फिर 9 बजे से क्लासेस होती थी। सो फॉर 55 minutes यू हैव अ क्लास एंड 10 minutes यू हैव अ ब्रेक। दिस अ वेरी गुड टी एंड वेरी हाई क्वालिटी लेमन टी, एंड काफ़ी अच्छा वहाँ पे खाना वाना होता था। कभी पफ्स होते थे, कभी बिस्किट्स होते थे। फूड इज़ रियली रियली अमेजिंग एट लवासना, इट्स अनमैचेबल। एक चीज़ तो है, मतलब वहाँ पे भाई खाना बहुत अच्छा होता है, और कुछ हो चाहे ना हो। सो देन यू हैव क्लासेस बाय सिविल सर्वेंट्स यूजुअली। जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं वो यूजुअली एक IAS ऑफिसर होते हैं, जैसे हमारे केस में सौरभ जैन सर थे। बाकी काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, IAS, फॉरेस्ट सर्विस, IRS, पोस्टल सर्विसेज, दोज हैव कम टू लवासना फॉर चिल, क्योंकि यूजुअली जो उनकी फील्ड पोस्टिंग होती है थोड़ी टफ होती है। लवासना की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टिंग काफ़ी चिल मानी जाती है। तो अगर हॉस्टल सिल्वर वुड्स मिले तो लाइफ बहुत ही सही होती है, 5 स्टार होटल जैसा है। बट देर आर अदर हॉस्टल्स ऑल्सो, गंगा हॉस्टल है, कावेरी है, नर्मदा है, 3 हॉस्टल और हैं। इंडिविजुअल वो नहीं होता वहाँ पे आपका, इंडिविजुअल रूम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ शेयरिंग रूम विच यू गेट इन लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी। बट व्हेन यू बिकम अ सीनियर ऑफिसर, जब आप फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 ट्रेनिंग के लिए आते हो, तो बढ़िया हैप्पी वैली में ठहराते हैं वो तो 5 स्टार होटल से भी। यू विल फाइंड दैट लाइक बेटर रूम्स देयर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द कमराडरी विच यू डेवलप। जो आप इतनी सारी सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, सोते हो रात में, और भी कई तरह के यहाँ पे मज़े होते हैं। अगेन मैं बता नहीं सकता पब्लिक में, बट जैसे ये कॉलेज लाइफ होती है आप वैसे ही उसको ट्रीट कर सकते हो हॉस्टल में। जो IITians, डॉक्टर्स भरे पड़े होते हैं वहाँ पे। जैसे 180 हमारे IAS ऑफिसर्स थे, 284 लोगों ने हमारे ऑफिसर ट्रेनीज थे वहाँ पे। तो 284 में से आप ये मान लो कि 160 इंजीनियर्स थे और करीब 40 डॉक्टर थे, तो 200 तो यही हो गए यार। अब उसमें आप लाइफ लॉन्ग दोस्त बनाते हो, ठीक है। सो बेसिकली यू फिगर आउट फ्रेंड्स, एंड एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू यू इफ़ यू आर आउट गोइंग। वहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत होती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो हमारे क्लासिकल डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो लोग आके आपके लिए परफॉर्म करते हैं। आप खुद भी वहाँ पे परफॉर्म करते हो। जैसे मैंने भी एक गिटार बजाया था, एक वीडियो डाला था लवासना, अगर आप देखोगे रोमन सैनी लिख के विल फाइंड अ गिटार वीडियो, बजाया हुए काफ़ी टाइम हो गया अब तो बेसिकली व्हाट दे ट्राई टू डू इज़, वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो एब्सोल्युटली यूजलेस हैं, तो सब पास हो जाते हैं, कोई लोड मत लेना। मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, पर्ट वर्ट एनालिसिस, थोड़ी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको देते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको करनी है। सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जैसे हम 2 सितंबर को गए तो 1 हफ्ते तो चिली मारा था, तो और फिर 1 हफ्ते में क्या कराते हैं, आइस ब्रेकिंग, थोड़ा मसूरी वसूरी का एक चक्कर लगा लेते हैं कि भाई छोटा सा टाउन है और बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, इसको पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है। सो वी वर 284 OTs, 160 उनमें से इंजीनियर्स थे, 45 आर्ट्स से थे, 37 डॉक्टर्स थे, 22 प्योर साइंसेज थे, 20 अदर्स थे, IIM वगैरह के जो होते हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे बहुत ही सर जो होती थी प्रोटेक्ट सिक्योरिटी, वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। तो एक फेक ऑफिसर ट्रेनी भी हमारे साथ रह के गई थी, रूबी, अगर आप नाम गूगल करोगे तो शायद मिल जाएगी। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है अब तो सिक्योरिटी, तो काफ़ी सीन देखने को मिलते थे हमारे वहाँ पे। और
जो 284 थे उसमें से 178 आईएएस ऑफिसर्स थे, 30 आईएफएस थे, 35 आईपीएस थे। बाकी आईपीएस कहाँ गए आप पूछोगे, बाकी आईपीएस एग्ज़ाम देते हैं आईएएस बनने के लिए। और बाकी पोस्टल सर्विसेज से, फॉरेस्ट सर्विसेज से, रेलवे सर्विसेज से, आईआरएस आईटी से, आईआरएस कस्टम्स वगैरह से, और भूटान के भी 4 लोग थे, रॉयल भूटानीज सर्विसेज के। सो आपको वहाँ पे जाते ही आपकी औकात सो टू स्पीक बता देते हैं कि आप कोई एलीट नहीं हो, यहाँ पे चुपचाप उठो सुबह और बिल्कुल 9 से 6 रिगरस क्लासेस होती हैं, 7 से 8 आपकी क्लासिकल होती है। बट हमारे जैसे जो लोग होते हैं जहाँ पे हैक ढूंढ ही लेते हैं सिस्टम्स को, बचपन से सिस्टम्स ही हैक किए हैं और कुछ किया नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सो जाते हैं यार क्लास के बीच में, पीछे जाके बैठ जाओ, थोड़ा बहुत चल जाता है ये सब कुछ। और बीच में आप सुबह, कई लोग तो शुरू में अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, रूम पे सो के वापस आ जाते हैं अगली क्लास से चालू होने से पहले। तो जिस तरीके से कॉलेज होता है आप उसको उस तरीके से ट्रीट करते हो। कुछ लोग ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं एलबीएस को, तो वो भी थोड़ा गलत होता है, इतना ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक जो बहुत बढ़िया चीज़ होती है वो ये होती है, एक जो आपका हॉस्टल्स है वहाँ पे एक कैफ़े है, जहा प्लाज़ा। वहाँ पे बहुत बढ़िया मोमोज़ मिलते हैं यार, कभी जाके खाना वहाँ के मोमोज़, दे आर रियली रियली गुड। ठीक है, तो जब हम गए थे तो पहली बार बंद गला पहना था, उससे पहले तो लाइफ में कभी सूट पैंट शर्ट तो पहनी नहीं थी। एम्स में तो वी यूज टू रोम अराउंड इन टी शर्ट एम्स की, और एक जीन्स होती थी। सो देयर वी हैड टू वी बंद गला, तो मैंने सिलवाया था उसको, आज तक 3 ही 4 बार पहना है। बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड टू कम देयर, श्री हामिद अंसारी सर खुद आए थे, और उत्तराखंड के गवर्नर भी थे, वो भी थे, तो उन्होंने हमारी 89th एफसी चालू करी। फर्स्ट वीक काफ़ी रिलेटिवली चिल था, उसमें लाइक वी हैड आइस ब्रेकिंग सेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फैकल्टी। तो हमारे काफ़ी आईएएस ऑफिसर थे, सौरभ जैन सर थे, प्रेम भोग जी सर थे, काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर थे, मैं नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे लोग थे वहाँ पे, 10 से ज़्यादा थे। और उसके अलावा आईआरएस ऑफिसर्स थे, पोस्टल सर्विस वाले थे, रेलवे ट्रैफिक सर्विस वाले थे, बहुत सारे लोग थे। तो फैकल्टी इतनी सारी होती है वहाँ पे, आप खुद 280 लोग होते हो, और फैकल्टी भी करीब 20-30 लोगों की होती है। उसके अलावा अकेडमिशियंस होते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले भाई पहले दिन ही बोला कि भाई 6 बजे आ जाना अगले दिन पोलो ग्राउंड में। तो काफ़ी वहाँ पे हालत ख़राब हो गई, बहुत ठंड लग रही थी, तो नहाते तो कभी थे नहीं, मतलब बाकियों का तो नहीं कह सकता, मैं नहीं नहाता था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। तो एनीवे मैं तो आराम से अपने 7 से 8:30 वहाँ पे अन अकेडमी का ही काम करता था, और कभी कभार मूवी देख लेते थे वहाँ पे। एंड सो आफ्टर दैट वी वर टॉट, जैसे मैंने बताया आपको, लॉ की क्लास होती थी, मैनेजमेंट की क्लास होती थी, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ाते थे। कुछ प्रोफेसर्स भी होते थे जो एस्टैब्लिश प्रोफेसर होते हैं ना आईआईएम वगैरह के, जैसे आईआईएम काशीपुर के एक प्रोफेसर थे वहाँ पे, द्वारका निहाल सर, वो भी हमें पढ़ाते थे, वो फेज़ 1 में आए थे। बाकी विजिटिंग फैकल्टीज़ तो भरी रहती थी, मैंने आपको इतने सारे नाम बता दिए। एलएसआर, डीयू, जेएनयू की विजिटिंग फैकल्टीज़ आती रहती थी। फाउंडेशन कोर्स में रिटायर्ड आर्मी जनरल्स आते थे, अता हसनैन सर ने जम्मू एंड कश्मीर पे लेक्चर लिया था। फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एस वाई कुरैशी सर भरे रहते थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। और पॉलिटिशियंस भी आते थे, योगेंद्र यादव भी आए थे। फिर काफ़ी बड़े बड़े लोग जो रघुराम राजन, गोपाल कृष्ण गांधी, शोभा डे, गुरचरण दास, टॉम एल्टर, तुषार गांधी, नचिकेत मोर, मोर कमेटी आपने सुनी होगी ना, तो उन्होंने अपनी कमेटी पे आके लेक्चर लिया था। फिर सुमंत बैनर्जी, सब अपनी अपनी विजडम शेयर करते थे, हम सोते रहते थे। मतलब रियलिटी तो यही है, क्योंकि रात को वहाँ पे कॉलेज जैसा ही माहौल होता है। ओके, एवरी सैटरडे को फाउंडेशन कोर्स में, देखो फेज़ 1 में जब आईएएस ऑफिसर्स ही बचते हैं, सो देन यू हैव फेज़ 1 में यू हैव सैटरडे एंड संडे ऑफ, तो आप फ्राइडे से मंडे सुबह तक चिल मार सकते हो। तो हम लोग फ्राइडे को 5 बजे निकल जाते थे, 10-11 बजे दिल्ली पहुंचते थे, फिर रात को 3-4 बजे निकलते थे, और सुबह 9 बजे सीधे क्लास में ही आते थे, कैब में ही कपड़े पहन लेते थे। हैं हमारे साथ ऐसे 4-5 दोस्त। एवरी सैटरडे फाउंडेशन कोर्स में आपको एक ट्रैक करना होता है, ट्रैक होता है यार 18 से 20 किलोमीटर का, और वो सुबह 8 बजे चालू करते हैं, सुबह 6 बजे चालू करते हैं रादर, और 3 बजे तक चलता है। तो जब तक आप आते हो पाँव टूट जाते हैं बिल्कुल, जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते तो ऐसा बिल्कुल कर्स करते हैं यार कहाँ फंस गए यार। लेकिन जब एक सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, एक अचीवमेंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हम कैंपटी फॉल्स में गए थे, बिनॉग हिल्स में गए थे, लाल टिब्बा में गए थे, वहाँ पे ब्लड सकिंग लीचीज़ होती हैं, उसको लाल टिब्बा बोला जाता है, एक मेरे भी लग गई थी, और काफ़ी टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, उसे पता भी नहीं चलता। फिर उसके बाद ओटी लाउंज होता है, उसमें वहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हो, पूल वगैरह खेल सकते हो, चिल मारो, सोफा पे पड़े रहो। वहीं पे आपके लॉकर्स होते हैं, वहाँ पे वो स्लाइड इन कर देते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह को। ठीक है, वहाँ पे ड्रिंकिंग चलती है, पूल वगैरह खेलते हैं, चिल मारते हैं लोग। उसके जस्ट नीचे ऑफिसर्स मैस है, वहाँ पे आपका खाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ठीक है, और एक हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल सकते हो। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं लोग पूछते हैं मेरे से। वहाँ पे है टेनिस का कोर्ट है, थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, ग्राउंड है तो फुटबॉल भी खेल ही सकते हो, बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे बैडमिंटन की काफ़ी शानदार फैसिलिटीज़ हैं, और टेबल टेनिस है। तो ये सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर 2 दिन, फिर उसके बाद क्या होता है, हम एक हिमालयन ट्रैक पे जाते हैं। हिमालयन ट्रैक में यू हैव टू
उत्तरकाशी गया था हमारा ग्रुप, तो वहाँ पे यार 80 किलोमीटर पैदल चलाया था एक हफ्ते में उन्होंने, 80-90 किलोमीटर। और उत्तरकाशी से यमुनोत्री अगर आप गूगल करोगे तो पहाड़ों के थ्रू होते हुए गए थे, रोड से नहीं गए थे हम। वो ऊपर नीचे होके बिल्कुल चकनाचूर हो गए थे पहाड़ लास्ट में। और एक बार तो हम 4500 मीटर्स पे बैठे थे, 4.5 किलोमीटर ऊपर जाके। वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल कट ऑफ होते हो। और तो लिटरली और मेटाफोरिकली आपकी लाइफ का वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, अनलेस कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए हो और आपको लगता है कहाँ आ गए हम, बिल्कुल ऐसे रॉयल फीलिंग आएगी आपको। वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होते, कोई वॉशरूम नहीं होता, कोई रूम नहीं होता, कुछ नहीं होता। भयंकर बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, बस अपने टेंट में सब ठिठुर रहे थे। कोई बाहर जाना होता है वॉशरूम जाने के लिए भी जंगलों में, ठीक है। उसके बीच में हम जब वापस आते हैं तो हम यमुनोत्री भी चढ़े थे ऊपर 5 किलोमीटर जाके, बहुत पाँव टूट गए थे यार उसमें करते करते। फिर उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने करी, जैसे हम गिटार बजाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे, गन गन चलाई हुई है काफ़ी। तो जब हम AK-47 चलाई हुई है, पिस्टल्स चलाई हुई है, आपकी LMG भी एक दो दोस्तों ने वहाँ पे चलाई थी, पाकिस्तान की तरफ करके फेज़ 1 में। जब भारत दर्शन होता है, कुकिंग सिखाते हैं, कुछ कुछ लोग बेकरी में जाते हैं, केक बनाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, आधे टाइम क्या, हमारे टाइम पे कैडर्स नहीं दिए थे, तो बस लोग यही सोचते रहते हैं इसका राजस्थान कैडर है, इसका MP कैडर है। और फिर मैच मेकिंग चलती रहती है कि मैं इससे शादी करके उस कैडर में चला जाऊँ, मैं इससे शादी करके ये इस कैडर में आ जाऊँ। क्योंकि ये 3 सर्विसेज होती है ना, IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। तो इनका आधा टाइम इसी में जाता है कि मैं इस कैडर में हो जाऊँ, मैं उस कैडर में हो जाऊँ। और जो बाकी सारी सर्विसेज होती हैं वो सोचती हैं कि मैं अगला एग्ज़ाम दूँ, मतलब जो फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन करते, दे जस्ट वांट टू गेट इनटू IAS। बिकॉज IAS और बाकी सारी सर्विसेज में काफ़ी भयानक डिफरेंस है, और एवरीबडी हैज़ टू एग्री विद इट। मतलब दैट इज़ वाई यू विल फाइंड 90% ऑफ द पीपल हु गेट सेलेक्टेड दे गिव द एग्ज़ाम अगेन। उसके अलावा मैच मेकिंग का काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। जो लोग शादीशुदा नहीं होते उन, और काफ़ी उन पे मतलब अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप देख सकते हो किसी भी बैच में आपको 20-30 कपल मिल जाएंगे। आप अभी गूगल कर लो, हमारे बैच में एटलीस्ट 10 से 15 कपल्स हैं जो आपस में शादी कर चुके हैं। तो 10-15 कपल का मतलब 30 लोग हो गए ना। तो बस वहाँ पे वही फिर उनकी लाइफ चलती है उसी के अराउंड कि भाई मैं इससे शादी करके मेरे होम कैटर में आ जाऊँ। वो मतलब होम कैटर में तो नहीं आ सकते, उसके आजू बाजू आने की कोशिश करते हैं। मतलब पीपल जस्ट टॉक अबाउट कैटर, पीपल जस्ट टॉक अबाउट लाइफ एंड सर्विस, और कुछ काम नहीं होता वहाँ पे। काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड सोल्स भी वहाँ पे गलती से पहुँच जाते हैं, बोले कहाँ फंस गए आप, मतलब उस टाइप के भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो मतलब इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो और कुछ लोगों को लगता है कि बस यही लाइफ का अंत है, बस अब यहीं पे जो करना है करना है। फिर रिवर राफ्टिंग होती है वहाँ पे, ऋषिकेश बाजू में ही है, आप जा सकते हो 2 घंटे में। फिर बंजी जंपिंग भी करवाते हैं, कई बार कूदा देते हैं यार पीछे से, बहुत डर लगता है। तो फिर जब ट्रैक से वापस आए तो काफ़ी असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, एसेज लिखने होते हैं। टर्निटिन से और सबमिट करवाते हैं, तो आप इंटरनेट से कॉपी भी नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर बुक रिव्यूज़ करवाते हैं बहुत सारे। मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे हमारे 22 अक्टूबर 2014 को। बट अब क्या हुआ कि मेरे को डिग्री मिली थी 20 अक्टूबर को, तो मैं तो भाग गया एम्स में आ गया, क्योंकि यार प्राइम मिनिस्टर सर आ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी। पता चला कभी मिले ना मिले वापस दोबारा, डिग्री तो लेने चलो। अब एम्स में वो आए थे तो 2 दिन पहले तो मैं वहाँ पे चिल मार रहा था, आप सोच ही सकते हो कितना ही पढ़ाऊँगा। तो वहाँ पे हम तो JLN ऑडिटोरियम में बैठे थे, हर्षवर्धन सर हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनसे डिग्री विग्री ली। फिर एक एग्ज़ाम जैसे तैसे पास करके एक मसूरी का चक्कर काटा 10 किलोमीटर का। उस टाइम भी पूरा मसूरी भगवाते हैं यार 1 घंटे में 10 किलोमीटर। फिर एक विलेज विजिट हुई थी 1 से 8 नवंबर की, तो मुरादाबाद गए थे यूपी में, तब भी बहुत चल मारे थे। कादरपुर मस्ती करके एक गांव था, वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे रह के आए थे 1 हफ्ते। और गांव वालों के साथ रहते थे, उनकी तकलीफ़ें सुनते थे। स्वच्छ भारत अभियान तब लॉन्च ही हुआ था उस टाइम पे, तो वो उसको भी काफ़ी प्रोपोगेट करना होता था, ठीक है। बहुत रिसेंट डेवलप था, वहाँ PHCs थी, स्कूल्स थे, पंचायत फंक्शनिंग थी। वहाँ का जो सरपंच था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी काम करता था। एंड वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स हमने देखे, किस तरीके की क्रॉप्स वहाँ पे उगाते हैं। फिर FC में और क्या होता है कि इंडिया डे करके एक इवेंट होता है जिसमें आपको अपने अपने क्षेत्र की ड्रेसेस पहननी होती हैं। तो हम तो जोधपुरी पहन गए क्योंकि राजस्थान का है, बाकी सब अपने अपने स्टेट की ड्रेसेस पहनते हैं। वहाँ नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन फूड बनता है, और एक्सट्रीम डाइवर्सिटी जो होती है इंडिया की, मतलब वो सब कुछ आपको दिखाई देगी वहाँ पे, फूड में, डांस में, कल्चरल परफॉर्मेंसेज में, प्रोसेशंस में। फिर एक एथलेटिक मीट होती है, उसमें अब हम तो भाई एथलीट मटेरियल है नहीं क्रिकेट खिलाएं तो अलग बात है। बट एनीवे मतलब उसमें आपको 100 मीटर 200 मीटर जैसा ओलंपिक होता है वैसा होता है। रंग बिरंगे ड्रेस पहन के परेड करवाते हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं आपको वहाँ पे। और फिर एक वैलेडिक्टरी फंक्शन होता है 12 दिसंबर को, जिसमें हमारे टाइम पे द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, ऑनरेबल श्री प्रणब मुखर्जी।
तो उन्होंने सबको मेडल वेडल दिए भाई, जिन्होंने 5 सब्जेक्ट में टॉप किया, और ओटी अवार्ड्स वगैरह मिले। उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो टाटा बाय बाय बोल के अपने अपनी जगह चली जाती हैं। जैसे आईपीएस लोग हैदराबाद चले जाते हैं एक्सेट्रा, और आईएएस लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। 3 दिन की छुट्टी होती है, ज़्यादातर लोग मसूरी रुक जाते हैं क्योंकि बर्फ़ बर्फ़ गिरने लग जाती है। हम भाग के फिर दिल्ली आ गए तो फिर 15 दिसंबर को हमारा फ़ेज़ 1 चालू हुआ। उसके बाद 1-2 दिन क्लासेस चली, और फिर 20 दिसंबर से हमारा फ़ेज़ 2 चालू हो गया। तो 19 की रात को हम सोए मसूरी में, और 20 की रात को हम उठे एलओसी पे। तो बस यही सफ़र था फाउंडेशन कोर्स का। तो उसके बाद कभी बताऊंगा आगे की ट्रेनिंग का। और बाकी आर्मी के साथ काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आऊँगा लाइव तो आप बता देना, आई विल बी हेयर। सो आई होप इट वाज हेल्पफुल। काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना फाउंडेशन कोर्स से। ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंट होते हैं, उनको लगता है वहाँ पे पता नहीं क्या उनको रॉयल किंग ट्रीटमेंट मिलेगा, बट वहाँ जाके पता चलता है कि वही स्कूल और कॉलेज का एनवायरनमेंट है। बट फ़ेज़ 1 में लाइफ रिलेटिवली चिल हो जाती है, बट जो आप दोस्त बनाते हो वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल, एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट मी टू आंसर। जब भी मैं नेक्स्ट आईएएस ट्रेनिंग पे कुछ लूँगा तो आई टेल यू, बट इट इज़ नॉट एज गुड एज यू, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट से इट, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स पब्लिकली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनकी सर्विस में लोड हो जाता है बाद में, प्रमोशन वगैरह मिले ना मिले, अच्छी पोस्टिंग्स मिले ना मिले, प्रमोशन तो सबका हो जाता है। खैर, सो ठीक है, थैंक यू यार, ओके बाय।